محکمہ تعلیم میں 40,000 امیدوار اب بھی روزگار کے منتظر، جبکہ دستیاب آسامیوں کی تعداد محض 7,500 ہے۔ سندھ اسمبلی پارلیمانی کمیٹی سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ وزیر تعلیم نے مزید 40,000 اساتذہ کی بھرتیوں کو مشکل قرار دے دیا۔ تفصیلات عاجز جمالی کی رپورٹ میں۔ اویس قادر شاہ کی قیادت میں قائم پارلیمانی کمیٹی سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ وزیر تعلیم سردار شاہ نے کمیٹی کو بریفنگ دی اور بتایا کہ مزید 40,000 اساتذہ بھرتی نہیں ہو سکتے کیونکہ اسامیاں صرف 7,500 ہیں۔ 40 کیسے لے سکتے ہیں؟ سیٹیں جب آپ کے پاس 7,500 ہوں گے، 40,000 آپ نہیں لے سکتے نا۔ کمیٹی اگر فیصلہ کرے گی تو 7,500 ہو سکتے ہیں۔ میں بھی پھر کیا ہوگا کہ جو فریش گریجویٹ ہیں 33 والے جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہیں گے کہ بھی ہم 5 سال آپ نے فیور ان کو دیا ہے، اگر 43 کی وہ ایج کراس کر گئے تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا قصور ہے، وہ قصور ہے ان کی قسمت کا۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ سردار شاہ نے اسمبلی کو پیشکش کی ہے کہ اساتذہ کی بھرتیوں کی مانیٹرنگ کی جائے۔ آئندہ جو فیوچر ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، جو جاب اپرچونٹیز آئیں گی، جو ٹیسٹنگ سروسز کے تھرو بچے پاس ہو کے آئیں گے، ان ساری ریکروٹمنٹس کو بھی، اس سارے پروسیس کو بھی یہ کمیٹی اوورسی کرے، ان ساری چیزوں کو یہ سپروائز بھی کرے، دیکھے کہ ٹرانسپیرنسی اور میرٹ یہ دونوں ہر جگہ پہ انشور ہونا لازمی ہے، تو یہ کمیٹی چیک اینڈ بیلنس رکھتی آئے ہر چیز۔ وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ 33 مارکس والے بھی بھرتیوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی آئندہ اجلاس میں اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ ہمیں ونس فار آل ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا، یہ جو بچے انتظار کر رہے ہیں کوئی ان کے لیے پالیسی بنے، لیکن ایسی پالیسی بنے کہ جو فردر اب آگے چل کر نوجوان اور بھی گریجویٹ ہوئے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ اسٹک اپ ہو کر معاملہ ہمارے نئے بچوں کے لیے جو نئے نوجوان گریجویٹ اور ماسٹرز کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی دروازہ رکا ہی رہے، اسٹیٹس کو والی صورتحال نہ رہے۔ تو ابھی ڈسکس ہو رہا ہے اس پر۔ ان سب کا اس بات پہ کنسنسس ہے کہ جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹمنٹ کا پروسیس آلریڈی چل رہا ہے، جو کہ 90,000 سے زائد 95,000 سے زائد ریکروٹمنٹ ہو گئی، تو اس میں جو رہ گئے ہیں اس کو بھی ہائر کرنے کے لیے میرٹ کو ملوث خاطر رکھا جائے۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی، MQM، PTI اور جماعت اسلامی کے ارکان سمیت مختلف سرکاری افسران نے شرکت کی۔ کیمرامین احمد علی کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ غریب آباد کی مکین گیس کی طویل بندش کے باعث شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ صبح اور رات کے اوقات میں بھی گیس کی عدم دستیابی نے گھریلو نظام کو مفلوج کر دیا۔ شہری مہنگے متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور، فوری ریلیف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ دیکھیں۔ غریب آباد میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا، گھریلو نظام متاثر ہونے سے مکین شدید پریشان۔ غریب آباد میں صبح اور رات کے اوقات میں بھی گیس دستیاب نہیں۔ گیس کی عدم دستیابی کے باعث گھریلو امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں اور شہری مہنگے متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ رہائشیوں کا شکوہ ہے کہ متعدد شکایت کے باوجود مسئلہ حل نہیں کیا جا رہا۔ خواتین کہتی ہیں کہ صبح سے گیس نہیں آتی، بچوں کے لیے ناشتہ بنانا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ رات کے اوقات میں بھی یہی صورتحال برقرار رہتی ہے۔ سلنڈر مہنگا ہونے کے باعث بجٹ سے باہر ہو چکا ہے، حکومت فوری نوٹس لے۔ میم یہاں پہ تو بہت مشکل سے آتی ہے گیس، اور جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے نا تو اس کے اندر ہم بناتے ہیں، مگر اس کے اندر بھی بہت سلو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بچوں کے اسکول کی پریشانی ہوتی ہے، اور بل دیکھیں بل ڈبل بھیجتے ہیں، یہ بلوں پہ کوئی انہوں نے کمی نہیں کری ہے۔ مزید یعنی جیسے ہمیں جو ہے نا پریشانی ہوتی ہے، سلنڈر وغیرہ بھی پھر ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے مجبوری کے تحت، تو اس سے ہمارا تھوڑا بہت گزر بسر ہوتا ہے۔ سلنڈر بہت مہنگا ہو گیا، مہمان آ جاتے ہیں تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، بازار سے کتنا منگائیں، بازار سے بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کی بندش کا فوری نوٹس لے کر مسئلہ حل کیا جائے تاکہ انہیں روزمرہ زندگی میں درپیش مشکلات سے نجات مل سکے۔ کیمرامین امجد کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 20۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اپڈیٹ کریں، شہریوں سے چھینے گئے موبائل فون واپس کرنے کی تقریب۔ کراچی الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن کے تحت 265 موبائل فون شہریوں کے حوالے کیے گئے۔ صدر رضوان عرفان کے مطابق برآمد موبائل فونز کی مالیت تقریباً 60 لاکھ روپے ہے۔ تفصیلات شاہ رخ شاہ کی رپورٹ میں۔ کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے تحت منعقدہ تقریب میں 265 موبائل فونز شہریوں کے حوالے کیے گئے، جن کی مجموعی مالیت تقریباً 60 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ تقریب میں SSP ساؤتھ انویسٹیگیشن توحید رحمان، CPLC کے افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ موبائل فونز واپس ملنے پر شہریوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ صدر کراچی الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن رضوان عرفان کا کہنا تھا کہ ہم گزشتہ 10 سالوں میں کروڑوں روپے مالیت کے موبائل فونز شہریوں کو واپس کر چکے ہیں۔ شہری اپنی چوری شدہ موبائل کی لازمی رپورٹ CPLC میں درج کروائیں۔ 16 سے ہم یہ کام کر رہے ہیں
एक SOP बनाई गई है कि कोई भी अगर मोबाइल खरीदेगा दुकानदार, वो शिनाख्ती कार्ड की कॉपी लेगा, कराची की CPLC कराएगा, और अगर वो कंप्लेन में होगा तो वो रिकवर करेगा। SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन तौहीद रहमान ने बताया कि पुलिस को जराइम के खात्मे के लिए ताजिरों के ताउन की जरूरत है। स्नेच्ड मोबाइल फोन या चोरी शुदा जो मोबाइल फोन है, उसके जरिए हमें एक लीड मिलती है कि इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, और उसके जरिए फिर हम गैंग को पकड़ने में कामयाब होते हैं। अब उसमें मेरी इस मीडिया के तवस्सुत से ये मैं कहना चाहूँगा कि जब भी कोई मोबाइल फ़ोन चोरी होता है या उसको स्नैचिंग होती है तो उसको रिपोर्ट ज़रूर करें। कानून नाफिज करने वाले इदारों और ताजिर बरादरी की मुश्तरका काविशें रंग ले आईं। ताहम शहरियों की बरवक्त इत्तला और ताउन ही जराइम के खिलाफ इस जद्दोजहद को मजीद मौसर बना सकता है। कैमरामैन शहरियार के साथ शाहरुख शाह, सिटी 21। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर भर में फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर सख्त चेकिंग की जा रही है, जबकि बगैर नंबर प्लेट्स और गैर कानूनी प्लेट्स वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मौके पर जुर्माने के साथ साथ जब्त भी किया जा रहा है। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। कानून तोड़ने वालों की शामत ट्रैफिक पुलिस ने डंडा उठा लिया। ट्रैफिक पुलिस का फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स के खिलाफ सख्त एक्शन जारी। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाकर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की सख्त चेकिंग की जा रही है। बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SO ट्रैफिक तारिक रूट नवाज सियाल के मुताबिक इस कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस के साथ CPLC ड्राइविंग लाइसेंस विंग, एक्साइज और जिला पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं। तो आज तकरीबन 7 मोटर बाइक हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन के हैंड ओवर किए जिन पे बिल्कुल नंबर प्लेट नहीं थी, और इसी तरह जो विदाउट नंबर प्लेट हैं जिसने सपोज पीछे लगाई हुई आगे नहीं है तो उनको चालान जनरेट किए जा रहे हैं। और इसी तरह जो है अगर किसी ने ऑब्स्ट्रक्ट की हुई है नंबर प्लेट या हाइड की हुई है तो उनको भी ऑन द स्पॉट चालान जनरेट किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम के मुताबिक नाके कोरंगी रोड, गुलिस्तान जौहर, नाज़िमाबाद और दीगर अहम शाहराहों पर लगाए गए हैं। सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस असलम का कहना था कि बगैर नंबर प्लेट, जाली या फैंसी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को न सिर्फ चालान किया जा रहा है बल्कि मौके पर ही गाड़ियां और मोटरसाइकिलें जब्त भी की जा रही हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम इनको समझाएं, इनको बताएं कि भाई आप ये काम नहीं करें, जल्दबाजी नहीं करें, अपने टाइम पे जब सिग्नल खुले आप फिर जाएं। बहुत ये करते हैं लेकिन इनको फाइन भी दे रहे हैं, बंद भी कर रहे हैं। अल्लाह पाक अगर बेहतर करेगा इंशाल्लाह। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान कई शहरी अपनी गलती तस्लीम करने से गुरेज कर रहे हैं। ताहम कानून की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो अपनी गाड़ियों पर सरकारी तौर पर मंजूर शुदा नंबर प्लेट आवेजा करें और गाड़ियों के कागजात साथ रखें ताकि जुर्मानों और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। कैमरामैन काशिफ के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। क्लिफ्टन दो तलवार के करीब रात गए मामूली ट्रैफिक तनाज़े ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। झगड़े के दौरान फायरिंग से FPR इंस्पेक्टर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर एक रिटायर्ड SP के बेटे पर फायरिंग का इल्ज़ाम सामने आया है। वाक़ई की तहकीकात जारी हैं और जाए वक़्वा से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए। उसामा मलिक की रिपोर्ट देखिए। क्लिफ्टन दो तलवार के करीब मामूली ट्रैफिक हादसा अचानक खूनी झगड़े में तब्दील हो गया, जिसके नतीजे में FBR इंस्पेक्टर शमशेर शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को काबू किया। जख्मी इंस्पेक्टर के भाई शाहजेब के मुताबिक वो गिजरी से अपने घर जा रहे थे कि दो तलवार के करीब गाड़ियों के साइड शीशे आपस में टकरा गए। जैसे ही गाड़ियां रुकी, डाले में मौजूद गार्ड नीचे उतरा और उसने असला तान लिया, जिसके बाद एक और शख्स भी आया और झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया और उसी दौरान फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में उनके भाई शदीद जख्मी हो गए जबकि वो खुद भी जख्मी हुए। जिससे हमने रोकी गाड़ी और उतरे गाड़ी से। जैसे ही उतरे तो गाड़ी तो सरकारी थी उनकी, वो उनका जो मुसल्ला गार्ड था उसने, हम जैसे ही उतरे तो उसने चैम्बर किया पहले हमारे पर, फिर वो खुद उतरा है, फिर उसने चैम्बर किया, फिर इन्होंने हमें मारना शुरू किया। तो वो गाड़ी में कितने अफराद सवार थे? दो थे जी, एक गनमैन जो पीछे बैठा था और वो खुद जो लड़का ड्राइव कर रहा था। और इन्होंने हमें ना पूछा ना क्या, बस मारना शुरू किया और उसके बाद जो है फिर गोलियां चला दी, जिसमें मेरा भाई जो है वो शदीद जख्मी है। पुलिस के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में सामने आया है कि झगड़े के दौरान आगा शेर नामी शख्स ने फायरिंग की, जो कि रिटायर्ड SP आगा असगर पठान का बेटा बताया जा रहा है। वाक़े के बाद पुलिस और क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़ुआ का दौरा किया और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से 9mm पिस्तौल का खोल भी मिला है, जबकि CCTV फुटेज हासिल की जा रही है।
दूसरी जानिब वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा कराची समीर उल हक ने मैट्रिक इम्तहानात में बदइंतज़ामी, नकल और पेपर आउट होने के मामलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि नकल कराने और पर्चे आउट करने में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर तलबा तंजीम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेगी। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात मजाक बन गए। नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा कराची ने बोर्ड की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए कि इम्तिहानी मराकज़ में नकल माफिया का राज है, पेपर आउट होकर व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर हो रहा है। इसमें मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़िम इस्लामी जमीयत का कहना था कि शहर के इम्तिहानी मराकज़ में कमी है, तलबा और तालिबात को जगह कम पड़ रही है। हम मुतालबा करते हैं कि इम्तिहानी मराकज़ बढ़ाए जाएं। हम नकल की रोकथाम के लिए पूरी मुहिम चलाएंगे और ना रुकी तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। इस साल जो इम्तिहानात होते हुए देखे हैं, कंडक्ट होते हुए, तो इससे बुरी तरीके से हमने कभी भी बंद इंतज़ामी नहीं देखी। मतलब हर बच्चा, जो मैं कह सकता हूँ कि जो पेपर के अंदर शरीक है वो चीटिंग के अंदर मुलव्विस है। इम्तिहानी मराकज़ इंतहाई कम है। जिस तरीके से बिठाया जा रहा है वो एक डेस्क के ऊपर 3-3, 4-4 बच्चों को बिठाया जा रहा है, जिसमें ना चाहते हुए भी वो बदइंतज़ामी के अंदर, बेज़ाब्ती के अंदर मुलव्विस हो रहे हैं बच्चे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामी जमीयत तलबा के सेक्रेटरी जनरल इतलात अब्दुल रहीम मुत्तकी समेत दीगर शोबेजात के जिम्मेदारान मौजूद थे। कैमरामैन हारिस के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कराची में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर तलबा के लिए इम्तहान देना मुश्किल हो गया। कुरंगी के एक इम्तहानी मरकज़ में बिजली की बंदिश के बायस तालिबात शदीद गर्मी में पर्चा देने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में जारी मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान सहूलियात का फुकदान, तलबा के लिए पेपर देना खुद इम्तिहान बन गया। आज सुबह के औकात में 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा लिया गया। कोरंगी 2.5 नंबर के इम्तिहानी मरकज में बिजली की बंदिश ने तालिबात की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। शदीद गर्मी के बावजूद पंखे बंद हैं और तालिबात हाथ से हवा करके पर्चा देने पर मजबूर हैं। इम्तिहानी माहौल मुतासिर होने के बाइस तलबा की कारकर्दगी भी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। असातिज़ा कहते हैं कि बिजली की बंदिश की वजह से बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना है। गर्मी में उनके लिए फोकस करना मुश्किल हो जाता है। हमने मुताल्लिका इदारों को भी आगाह किया है कि फौरी मसला हल किया जाए। लेकिन इस टाइम गर्मी का ये आलम है कि जब आप खुद देख रहे हैं हरारत क्या पहुँचे, टेम्परेचर पहुँचा हुआ, तो मैं हुकाम वाले से गुजारिश करूँगा कि KSC को वो पाबंद करें कम से कम दौरान पेपर। अभी तो हमारे साथ जैसे चल रहा है कि सेकंड शिफ्ट में जो पेपर होगा, जो गर्मी में 2 बजे 2:30 बजे पेपर शुरू होगा, उस टाइम बच्चों का क्या आलम होगा। तालिबात कहती हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, पंखे नहीं चल रहे, हमें पर्चा हल करने में मुश्किल हो रही है, पसीना आ रहा है, जहन काम नहीं कर रहा। अगर बिजली होती तो हम बेहतर तरीके से पेपर दे सकते। लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, इस वजह से पेपर करने में बहुत मुश्किल हो रही है हमें। लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें मुश्किल हो रही है पेपर करने में, तो गुजारिश है कि शदीद गर्मी और बिजली की बंदिश जैसे मसाइल इम्तिहानी निज़ाम पर सवालिया निशान बन गए हैं। तलबा और असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि इम्तिहानी मराकज़ में फौरी तौर पर बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि तलबा यकसुई के साथ अपने इम्तिहानात मुकम्मल कर सकें।